بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، ارشاد باری تعالی ہے آیت نمبر 117 سورہ توبہ 11واں پارہ۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ تحقیق اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی نبی کی طرف اور مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان پر اور ان انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان پر الذین اتبعوا فی ساعة العسرة، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کی، ساتھ دیا مشکل گھڑی میں۔ ساعۃ العسرہ غزوہ تبوک کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مشکل گھڑی تھی۔ پس منظر یہ شدید گرمیوں کا موسم ہے اور سواریاں نہیں ہیں۔ ایک اونٹ سواری کے لیے 10 صحابہ کرام علیہ رضوان اس پر یوں سوار ہوتے ہیں، ایک سوار ہوتا ہے، باقی 9 چلتے رہتے ہیں۔ پھر کچھ حصہ وہ اتر جاتا ہے، دوسرا بیٹھتا ہے، یعنی 10ویں مرتبہ ہر ایک کی باری آتی، کیونکہ ایک اونٹ پر 2 بندے سوار نہیں ہوتے، ایک ہی سوار ہوتا۔ وہ کجاوا ہوتا ہے، اس میں اور صورت ہوتی ہے۔ حالت جنگ میں کجاووں کے علاوہ اونٹ جاتے ہیں، اس میں پھر ایک بندہ ہی بیٹھ سکتا ہے پلان پر، تو وہ پھر 10 بندے ایک ایک سواری کے ساتھ مقرر تھے۔ اور کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش کا کیا عالم تھا۔ ایک ایک کھجور پر 6 صحابہ کرام علیہ رضوان، اور حتیٰ کہ کئیوں کے پاس تو کھجوریں جب ختم ہوگی تو وہ گٹھلیاں چوس چوس کر بھی پھر ایک گھونٹ پانی کا لے لیتے، پانی کی بھی قلت۔ غزوہ تبوک میں اب ظاہر حوالہ جات یوں کہ حدیث نمبر فلاں کتاب، کچھ لوگوں نے اس کو بیان کر کے اصل مخز ختم کر دیے۔ یہ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے، سیاستہ کی دیگر کتابوں میں، کہ عین جس وقت بڑی پریشانی بڑی، پانی کی قلت ہوئی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں تو اللہ رب العزت بارش ہی رحمت عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اے صدیق، تمہاری دلی خواہش ہے کہ میں دعا کروں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسی وقت آپ نے اپنے دست مبارک بلند فرمایا دعا کے لیے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حضور سے متعدد روایتوں سے ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے، دعا فرمائی، ابھی نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک واپس نہیں ہے، بادل چھایا، گرجا، برسا، اتنا برسا کہ پورے لشکر والے سیراب بھی ہوئے، سواریوں کو بھی سیراب کیا، مشکیزیں بھرے اور نہائے دھوئے سب فرش ہو گئے۔ یہ منظر اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ امام اہل سنت بولے حضور کے عظمت اور شان کو، لوگوں
अपने जैसा न समझना। हजूर वो हस्ती है जिनके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई है, उनका अल्लाह के वहां मर्तबा और मकाम क्या है। सारी दुनिया अल्लाह की रजा चाहती है, लेकिन रब अपने हबीब की रजा देखना चाहता है। पर रब चाहते हैं मेरा हबीब किस बात में राजी है। ये कुरानी बात है, सिर्फ मोहब्बत की जज्बाती बात नहीं है। कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ हबीब, आपका चेहरा मुबारक बार बार आसमान की तरफ उठना और ये दिल में ख्याल आना कि बैतुल मुकद्दस की बजाय बैतुल्लाह काबा बन जाए, वही किबला बन जाए, उसी को ही तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाए। रब फरमा रहा है हम इस मंजर को भी देख रहे हैं। ऐ हबीब, आपके चेहरे मुबारक को हम देख रहे हैं, अन करीब हम उसे ही किबला बना देंगे जिसको किबला बनाने को आप पसंद करते हैं, आप राजी हो जाए। तरदाहा, ताकि आप उस पर राजी हो जाए। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हजूर अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। ऐन उसी हदीस में ये लफ्ज है। साहबे किराम रिजवान कहते हैं हमने लश्कर रवाना किया और जहां लश्कर पड़ाव करके चंद कदम हम जब आगे बढ़े, बिल्कुल उसी तरह खुशकी है, कोई बारिश नहीं बरसी, कोई बादल भी नहीं है। यानी उन्होंने ये बयान करके ये उम्मत को बताया। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ ऐसी कबूल हुई जो मैदान जिहाद में जाने के लिए साहबा परेशानी के आलम में थे, वो सब रहमत इलाही सिर्फ उन्हीं को नसीब हुई जो मैदान जिहाद में जाने के लिए हजूर के साथ जा रहे थे। और ये अल्लाह तबारक व तआला की खास इनायत थी, मदद और नुसरत थी। और इसी मुश्किल घड़ी में भी साहबा किराम अलैहिम रिज़वान ने न तलवारों का मुतालबा किया, न ग़िज़ाओं का मुतालबा किया। आज के मुस्लिम अफवाज के लिए ये मिसाल रहा है कि वो वक्त के हुक्मरानों से या दीगर लोगों से अपने ग़िज़ाई अशिया खुर्द-ओ-नोश दीगर उसके मुतालबे के लिए दरवाजे खोल दे, और जब आए मैदान अमल में उतरने की तो फिर पीछे हटते नहीं। बल्कि साहबा किराम अलैहिम रिज़वान तो वो हस्ती हैं जिन्होंने एक एक गुठली चूस कर, एक एक घूंट पानी का पीकर, एक एक सवारी पे 10-10 साहबा, अब तो पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां आ गई हैं, उनके जनाब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान बेसारो सामान हजूर अलैहिस्सलाम के साथ इतनी वफादार थे। जानिसारी का ये मुजाहरा किया कि ऐन मुश्किल घड़ी में भी हजूर अलैहिस्सलाम का साथ न छोड़ा, बल्कि सुलहिबाल मन शेता आते मन शेता, या रसूल अल्लाह जो आप चाहें हम उसी तरह हाजिर, हमारे माल भी हाजिर, हमारी जाने भी हाजिर। बदर तो ये कह रहा है आप हुक्म फरमाए तो हम घोड़े भी समुद्र में डाल दें। और ये ऐसी जज्बाती बात नहीं, और भी आगे चले साहब किराम अलैहिम रिज़वान के जज्बा। रब भी खुद कुरान में फरमाता तहकीक अल्लाह अपनी रहमत से मुतवज्जह हुआ, रब की रहमत ने तवज्जो फरमाई नबी पर, मुहाजिरीन पर और अंसार पर। किस सिफत की बुनियाद पर? अल्लज़ी नत्तबऊ फी सातिल उसरा, वो जिन्होंने मुश्किल घड़ी में और तंगदस्ती के आलम में, आज परेशानी के आलम में नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी की, इत्तेबा की। खुशहाली में हजूर की पैरवी करना ये तो शान, लेकिन तंगदस्ती में हालात साजगार ना हो फिर भी हजूर की इत्तेबा का दामन न छोड़ना, ये अच्छे लोगों की अलामत है। मिन बाद मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम, बाद इसके कि उन्हीं में से एक गिरोह के दिल वो दहल चुके थे। यानी इस परेशानी से कईयों के दिल दहल चुके थे भी। ये तो जब मुश्किल घड़ी आती है पता तो उससे चलता है, आसानियों में और रहने वाले, जबकि हम हमारी इबादत कितनी सहूलियात में होती हैं, कितनी सहूलियात होती हैं, फिर भी हम नाशुक्रियां करते हैं। हमें तो चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की रजा पे राजी रहें कि इतना पुरसुकून माहौल में अल्लाह की इबादत करना नसीब हो रही। साहबा किराम अलैहिम रिज़वान जिहाद जैसे मुश्किल मरहले में भी
मुश्किलात का सामना करके पीछे न हटे। कुरान में अल्लाह ने उनका जिक्र फरमाया, सुम्मा ताब अलैहिम, अल्लाह ने फिर उनकी तरफ अपनी रहमत से तवज्जो फरमाई, वो भी साथ चल पड़े। फरमाया इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, बेशक रब उन्हीं पर ही मेहरबान भी है और रहमत फरमाने वाला है। किन पर? जो मुश्किल घड़ी में दीन का साथ देते हैं, अल्लाह के नबी की पैरवी करते हैं। अल्लाह अकबर। ये क्या मंजर था। गज़वा उहद का मौका है। एक अफवाह चली कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। सारे अहबाब तारीख का वाक़या पढ़ते रहते, सुनते रहते उलमा को। मदीना तैयबा में कोहराम मच गया। खवातीन इस्लाम से रहा न गया कि हजूर अगर दुनिया से तशरीफ ले गए तो फिर बाकी क्या, इससे बड़ी मुश्किल बदला। अल्लाह अकबर। एक खातून घोड़े पे बैठती है, अपनी सवारी पे बैठती है, वो फौरन मैदान उहद में पहुंचती है और सबसे यही कहती जाती है, हजूर का सुनाओ, हजूर का क्या हाल, मा फ़अल रसूलुल्लाह, बताइए हजूर का क्या हाल है। और देखने वाले जानते थे ये खातून कौन है और किन की रिश्तेदार है। आगे से वो कह रहे हैं तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है, और वो फिर भी जुमले ये बोल रही हैं, मुझे ये बताओ हजूर का क्या हाल है। और आगे फिर किसी से पूछा, उसने कहा तुझे पता है तेरा बाप भी शहीद हो गया। उन्होंने कहा मुझे ये बताओ हजूर का क्या हाल है। फिर आगे पूछ बढ़ी तो उन्होंने कहा तुम्हारे शोहर शहीद हो गए। उन्होंने कहा मुझे ये बताओ हजूर का क्या हाल है। करीबी रिश्तेदार, भाई, बेटा, शोहर, ये उनकी शहादत की खबर सुनकर कोई जजा फजा नहीं, उसी तरह पर्दे में लिपटी हुई। लोगों ने हैरान होकर भी कहा, पूछा कि इतने गमों की खबरें तुझे सुनाई दी बताई जा रही हैं, तुम्हें फिर भी हजूर की फिक्र है। उन्होंने कहा जिनके लिए जीना मरना है तो बात तो फिर उन्हीं की है, पहले हजूर का पता किया जाए, हजूर का क्या हाल है। हमें ये खबर सुनी गई, हत्ता के जिस वक्त करीब पहुंची इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की खबर मिली कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप बहिफाजत मौजूद है, खैर वाफियत से हैं, तो फिर भी कहा मुझे हजूर के पास ले चलो। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के करीब पहुंची, हजूर को बहिफाजत खैर वाफियत से देखकर क्या जुमला उस मई साहबा ने कहा कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, या रसूलल्लाह आपकी हिफाजत और सूरत आफियत वाली देखकर मैं अपनी हर मुसीबत हर परेशानी को बर्दाश्त करने के लिए बाहिम्मत हूं, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है, सब कुछ बर्दाश्त। और दूसरे जुमले तो हदीस पाक में यहाँ तक कहते, या रसूलल्लाह आपको खैर वाफियत से देख लिया है, अब न मुझे किसी और के शहीद होने का गम है, क्योंकि हमारी सारी जिंदगियों की सांसें सब कुछ आपके सदके हैं। ये थे जज्बात खवातीन इस्लाम के। आज कहाँ हम खड़े हैं, हमारे अंदर अपने ईमान की हरारत जगानी होगी और अपने अंदर ईमान को जंग नहीं चढ़ने देना गुनाहों का, बल्कि इसे पाक साफ रखना होगा। और ये खुश नसीबा कौन थी? हजरत सैयदा उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातून थी। ये थी सहाबियात। और फिर और तो और मैं अभी आते हुए एक बात पढ़ रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहबाब सो कर आते तो समझते हैं हर बंदा सोया होता है, अपने अपने तसव्वुर होते हैं, गुमान अच्छे करने चाहिए, किसी पर बोतान और बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। तो मैं हदीस पाक आते आते पढ़ रहा था तो दर्स अपनी सुभान अल्लाह बरकतें हैं, लेकिन उस हदीस पाक को भी सुनिए कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के अंदर कितना जज्बा है। ये जो कुरान मजीद हम पढ़ रहे हैं ना, सीख रहे हैं, इसकी बरकत क्या है। कंजुल उम्माल की हदीस पाक है कि हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दरवाजे पर न एक शख्स कसरत से दस्तक देता, वो अपनी हाजत के लिए, अपनी जरूरत के लिए, हजरत मुझे फलां चीज जरूरत है दे दी जाए, आप पेश कर देते। फिर आज मुझे राशन की जरूरत है, दे देते। इसी तरह कसरत से लफ्ज है कि युग सिर राजुलो, हजरत फारूक आजम के दरवाजे पर एक आदमी कसरत से बार बार कुछ न कुछ मांगने के लिए, अपनी हाजत को पूरा करने के लिए पेश होता। एक दिन सीना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जलाल में आगे तो फरमाया इज़हब फतअल्लम
किताब अल्लाह, फरमाया जा अल्लाह की किताब कुरान मजीद को सीखना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे, इसको जानना शुरू कर दे। आप खुद अंदाजा ना कि जवाब में आपने ये नहीं डांटा कि आइंदा मेरे दरवाजे पे आना, भीख नहीं मिलेगी, जरूरत नहीं पूरी होगी। फरमाया जाओ कुरान मजीद की तालीम हासिल करो, कुरान पढ़ो। अल्लाह अकबर। जमाना चलता रहा, कई दिन हो गए, अब उस शख्स ने आना बंद कर दिया। जो नेकी के काम करने वाले होते ना, उनको आदत पड़ जाती है। अल्लाह कह रहे हैं हमें भी नेकी के कामों की आदत बन जाए, ऐसी आदत कि जब तक वो नेकी का काम ना हो तो चैन नहीं आता। अल्लाह अकबर। फारूक आजम परेशान है कि लगता है वो तो खफा हो गया है, मेरे पास आना ही छोड़ दिया है। वो जो सदका मैं करता था, खैरात निकलती थी, बहरहाल कई दिनों बाद फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहर की गलियों में रास्ते में मिल गया। तो आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, तुम तो हमसे नाराज ही हो गए हो, मैंने तुझे ये तो नहीं कहा कि मेरे दरवाजे पे ना आना और कुछ, तो आप आए नहीं। उसने पता क्या जुमला कहा, ए उमर, आपने जो मुझे सबक दिया और अल्लाह की किताब ने मुझे उमर के दरवाजे से बेनियाज कर दिया है। अल्लाह की किताब कुरान ने उमर के दरवाजे पे आने से मुझे बेनियाज कर दिया है। यानी मैं अब कुरान पढ़ता हूँ, कुरान सीखता हूँ, इसकी बरकत से रब ने मेरे अंदर खुशहालियत मुझे अता फरमा दी है। मुझे अब उमर के दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है। तो अब इससे सबक क्या मिलता है? ये कुरान मजीद ऐसी किताब है जो बंदे को सब्र सिखाती है। यही वो किताब है जो बंदे को तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल सिखाती है। और यही वो किताब है जो किनात का दर्स देती है। जब बंदा इसको पढ़ने वाला हो, जल्दी जल्दी भिखारी नहीं बनेगा, अपनी तंग दस्ती में भी किसी के सामने दस्ते दराज हाथ सवाल नहीं फैलाएगा, और अपनी परेशानी के लिए नहीं, वो अपनी कनात इख्तियार करेगा, थोड़े से ही में अपनी जिंदगी गुजार जाएगा। क्योंकि कुरान मजीद इन तमाम चीजों का दर्स देता है, सबक सब्र का देता है, कनात जारी कर देता है, तवक्कुल कर देता है, हौसला और बुर्दबारी पैदा हो जाती है। तो हजरत फारूक आजम को उन्होंने ये जवाब दिया कि आपने मुझे सबक दिया कि कुरान सीख, कुरान पढ़। मैंने कुरान मजीद से अपना ताल्लुक जोड़ा है, और अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान ने मुझे उमर के दरवाजे से बेनियाज कर दिया। तो ये वो किताब है जिसको हम पढ़ सीख रहे हैं। हमारी खुश नसीबी है, चंद लम्हे हमारे कुरान मजीद को पढ़ने सीखने में गुजरते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकत हमें नसीब होती है। तो आगे बात बढ़ाते हैं, तो आयत नंबर 118, फरमाया दरसे के दो तीन वो शख्स जो पीछे रह गए। पीछे ग़ज़वा तबूक के अंदर एक तो मुनाफिकीन की जमाती जो कि 80 या 70 से ज्यादा थे, उनकी मुजम्मतें, उनके उज़्र कबूल ना होने वो बयान हुई। 10 मुखलिसीन साहबा किराम अलैहिम रिज़वान वो भी ना जा सके, जिनमें से 7 ने अपने आप को मस्जिद नबी शरीफ के सतूनों से बांध दिया, पीछे बयान हो चुकी, और फिर उनकी तौबा भी कबूल होगी। और वह आखिरून मुरजौन लिअम्रिल्लाह, और 3 जो हैं उनके तौबा की कबूलियत के हुक्म को मुअख्खर किया गया था अल्लाह के हुक्म से। और वो 3 शख्स, उनका जिक्र इस आयत में कि वो 3 शख्स जो पीछे रह गए थे, जिनकी तौबा की कबूलियत मौकूफ कर दी गई थी, और वो हजरत हिलाल बिन उमैया, हजरत काब बिन मालिक, हजरत मुरारा बिन हिलाल, ये 3 हस्तियां थी। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को फरमा दिया इनसे कोई बातचीत न करे। यानी इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर सोशल बाइकाट का नजरिया खुद मौजूद है। यहाँ कहते हैं हम उनसे जनाब बाइकाट कर दे, मईशत हमारी क्या जाएगी। जब दीन का मसला समझाना है तो फिर कुछ भी करने को अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत फरमाया। हजूर अलैहिस्सलाम इनसे कोई बातचीत नहीं करेगा, इनसे कोई लेन देन नहीं करेगा, और इनके साथ हत्ता कि आज का तो जमाना था नहीं, जाहिर कुछ बातिन कुछ, मस्जिद में कुछ, बाहर कुछ। कहते हैं कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान हजूर के इस हुक्म पर इतना अमल किया
बावजूद सगे भाई होने के, अजीज होने के, इन तीन से कोई एक भी नहीं बोलता था। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं जवान थे, बाकी दोनों बुजुर्ग थे, तो कहते हैं मैं बाकायदा दनिश्ता तौर पर बाजार में चला जाता कि ताकि मैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, आज का कोई बंदा हो तो सलाम के जवाब न दे तो फौरन फतवा ही लग जाता ना, मसले आपका पता नहीं। उस वक्त यही तीनों साहबा कहते हैं हम जाते थे दोस्तों को जाकर कहते थे अस्सलाम वालेकुम, तो सलाम का जवाब तो मिलता। उसके अलावा जब हम पूछते आप खैरियत से फलां है, ऐसे लगता कि वो हमसे जवाब ही नहीं देते, कोई बात भी नहीं करते थे। कुरान ने इस मंजर को बयान किया कि वदाकत अलैहिम अनफुसहुम, उन पर उनकी जाने और उन पर जमीन तंग हो गई, रिश्तेदार मुंह नहीं लगा रहे, अजीजो अकारिब मस्जिद नबी शरीफ में आते नमाज पढ़ रहे हैं हजूर के पीछे, इमाम अंबिया सलाम से बातचीत नहीं, हजूर वैसे अपनी रहमत की निगाहें देखते रहते हैं। जब हजरत काब बिन मालिक कहते हैं मैं देखता तो हजूर अलैहिस्सलाम अपना रुखैन और फिर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के लिए ये मंजर कितना मुश्किल था। लेकिन एक वक्त फिर 50 दिन ये मरहला रहा, कितने दिन? 50 दिन। फिर इन्हीं दिनों में एक वक्त ये भी आया कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का कासिद के पास पहुंचा, उन्होंने जाकर कहा हजूर फरमा रहे अपनी बीवियों से जुदा हो जाओ, अपनी बीवियों से भी जुदा हो जाओ, यानी बिल्कुल आहलिया से जो मेल जोल है, घर में रहना है, वो भी अलहदा कर दो। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए साहबा किराम अलैहिम रिज़वान की जज्बे वफाए रसूल से कि नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का क्या जज्बा था उनको। वरना तो बंदा तंग आकर कहते थे यार इन्ना भी इस्लाम मुश्किल को नहीं होता, साढ़े वास्ते थे जनाब, इन्नी जमीन भी तंग हो गई, रिश्तेदार जो के भी डरिए, रिश्तेदार भी सानू नहीं बोलते, हमसाए भी नहीं बोलते, बाजारा में भी गलियां में सारे नाल कोई गल्लां कोई नहीं करता, इन्ना इस्लाम तंग हो गया है जनाब, सारी कई जुर्म जंगे च नहीं गए, बस कोई बातें हो सकती हैं। आज की बात ये कर रहा हूँ, साहबा तो ये सोच ही नहीं सकते थे। आज की हम अपने दोनों को अपने जमाने की बातें करें, हम कितने बड़े बातें जुबान खोल देते हैं इस्लाम के लिए, अल्लाह की पनाह हो। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान इस मुश्किल मरहले में आने वाले कासिद को बजाय ये कहने के जाकर कह देना कि जनाब बस हो गई, अब हमसे सब्र भी नहीं होता, हम अपने हमारा अपना कुछ जो मर्जी करें, ना ना ना, बल्कि आने वाले कासिद को कहा जाओ हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछ करो, सिर्फ वैसे बिस्तर और उठना बैठना अलग करना है या तलाकें दे देनी है। अगर हजूर फरमाए तो हम तलाकें देने के लिए भी तैयार हैं, सिर्फ हजूर राजी हो जाए, हमें ना माल चाहिए ना औलाद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब जब हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ये पैगाम पहुंचा, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी जो है सिर्फ अलहदा रहने का हुक्म है, तलाक देने की इजाजत नहीं है। 50 दिन ये मरहला गुजरा और ये तीनों सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, और इसमें एक और इम्तिहान भी, हजरत काब बिन मालिक बड़े शायर भी थे, बहुत बड़े। जब माजरत की बारी आई ना तो आप देख रहे थे लोग झूठ बोलकर जा रहे हैं, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने जो शायर भी थे, कबीले के सरदार भी थे, तो इनकी जब बारी अर्ज़ किया सुल्लाह बातें बड़ी है, मैं ऐसी बातें भी बताऊं आप भी मुतमैन हो जाएं, लेकिन आपसे दो नंबरी हो नहीं सकती, आपके सामने दूसरी बात हो ही नहीं सकती। हकीकत बात यह है हमारा कोई उज़र नहीं था, हमसे ये ऐसे ही ये मरहला रह गया, हम गज़वे में जा ना सके, हमारा कोई उज़र नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, रब जब तक तुम्हारे लिए हुक्म नहीं फरमाता उस वक्त तक तुम्हारी तौबा जो है मौकूफ है। तो इस मरहले में फरमाया से कोई बातचीत भी ना करे, ये सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान ना रूम की सल्तनत के बादशाह का तफर्रुक आ गया, हजरत काब बिन मालिक के बाद मुरारा बिन कि जनाब ऐन वो धूप दोपहर को तनूर में पर घर वाले रोटियां लगा रहे थे, उस वक्त कासिद ने आपको खत पढ़वाया, लिखा हुआ क्या था, हमें पता चला है तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया है, न तुम मोहल्ले के रहे हो न तुम रिश्तेदारों के रहे हो, कोई तुमसे बात नहीं करता, उनको क्या पता तुम्हारी शान का, हमारे करीब आ जाओ, हम तुम्हें आधी सल्तनत में शरीक कर देंगे, बादशाही दे देंगे, हम तुम्हारी कदर करेंगे, जो तुम्हारा मनसब बनता है वही देंगे। मुख्तसर जुमले बोल रहा हूँ, बड़ा मुफस्सल वाक़या ये भी बुखारी शरीफ के हवाले में लिखा हुआ है, मौजूद है। तो हजरत जब ये खत साहबा किराम अलैहिम रिज़वान के पास आता है, क्या जज्बा है,
आपने फरमाया एक लम्हे भी ना रुके। उस वक्त तनूर चल रहा था। आपने फरमाया अगर ये खत मेरे पास रह जाएगा तो कभी दिल में ख्याल आएगा यार दिल बर्दाश्ता हूं, कहीं मैं चला ही जाऊं छोड़कर। और उसी वक्त फाड़ा और जलाकर उसको तनूर में डाल दिया, जल गया, ताकि मेरे दिल में ये ख्याल ही ना आए। अब फिर आंखों से आंसू जारी हैं कि या अल्लाह अब मेहरबानी फरमाओ, मुझ पर राजी हो जाओ कि रसूल करीम मुझसे नाराज है, वो राजी हो जाए। अब तो मेरे ईमान का सौदा होने लगी है, मुझे गैर मुस्लिम दावतें देने लगे हैं, अब तो मेरे इस्लाम पर भी हमले होने लगे हैं। लेकिन उन तीनों ने अगर वफाए रसूल का हक अदा किया तो रब ने उनका तज़किरा भी कुरान में फरमा दिया। फरमाया वो तीन जो पीछे रह गए, हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्द, यहाँ तक कि जब उन पर जमीन तंग हो गई बावजूद कुशादा होने के, वदाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, उनकी अपनी जानें भी तंग हो गई कि अब जीना कैसे है। आप जरा तसव्वुर तो करो, मोहल्ले में कोई बात भी ना करे, रिश्तेदार भी, रिश्तेदारी वाले मामला सब मुनक़ते मौकूफ हो जाए, कितना मुश्किल कठिन मरला होता है। फरमाया वज़न्नु अलजाम अल्लाह मलजा मिन अल्लाह, लेकिन उनको ये यकीन था कि हमारी पनाह गाह सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह हमसे राजी होगा तो सब मसले हल हो जाएंगे। फरमाया सुम्मा ताब अलैहिम, रब ने फिर उनकी तौबा कबूल फरमाई, ले अतूबू, क्योंकि वो भी तौबा कर रहे थे। इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। इंशाअल्लाह नज़ीर आयत नंबर 119 से कल जिक्र होगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बे कायनात दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। मुश्किल मरहला भी आए तो फिर उस वक्त भी हम कलमा तय्यबा कहना जुबान से छोड़े ना, यही दर्स का सबक है। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावा या